Hello student, welcome to your class 9 biology class, and today our topic is permanent tissue. In last video we start our plant tissue before we complete our animal tissue. Last video we discuss about the plant tissue and types of plant tissue. First part, that is the meristematic tissue. In this video we talking about the second type of plant tissue, that is the permanent tissue. What is, now understand what is permanent tissue. In meristematic tissue we know about that meristematic tissues are those tissues that have the cells in which dividing capacity is found. But now we talking about the permanent tissue, the tissues, or we can say the group of cells that has, or we can say that do not have the ability of division are called permanent tissue. The tissue that do not divide further are known as permanent tissue. मेस्मेटिक, किसी प्लांट के अंदर जब मेस्मेटिक टिश्यूज की जो सेल्स हैं स्टेम में और रूट में, हमने बताया था स्टेम और रूट्स में वो प्रेजेंट होती हैं, तो जब आपका सीड से सीडलिंग डेवलप होता है तो उसके बाद जो आपकी सेल्स हैं वो एक लेवल तक ही डिवाइड होती हैं, उसके बाद वो लेंथ में डिवाइड नहीं होती हैं। उसके बाद वो आपकी क्या होती है, प्लांट्स की ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं, उन पे लीव्स आ जाती हैं। तो वो जो ओरिजिनेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस परमानेंट टिश्यूज। सो इसीलिए हम कहते हैं कि टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो आपके डिवाइडिंग कैपेसिटीज नहीं रखते हैं। डेट मीन्स अब एक लीफ का साइज इतना होना था तो इतना हो चुका है, अब उसमें फर्दर जो है और उसके साइज में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा। उसकी जो सेल्स हैं वो फर्दर अपने आप को सेटल कर सकती हैं, लेकिन वो एक लेवल तक आने के बाद वो आपका क्या करेंगी, वो अपना डिवीजन स्टॉप कर देंगी टू इंक्रीज देयर लेंथ और विड्थ। नाउ वी टॉकिंग अबाउट जस्ट लाइक आवर, आपकी हाइट क्या होती है। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको मम्मा खाना खिलाती थी, या घर के और भी जो पेरेंट्स हैं वो खाना खिलाते थे, दादी अम्मा, तो आप क्या था, आपकी हाइट इंक्रीज होना शुरू हुई, लेकिन एक लेवल तक आकर क्या हो जाती है, आपकी हाइट रुक जाती है। उसके बाद आपका क्या होता है, आपका फर्दर डेवलपमेंट होता है। डेट मीन्स आपकी जो बॉडी की सेल्स हैं वो आपके हाथों में, आपकी स्किन्स के डेवलपमेंट में, आपके फेस स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, वहाँ पर वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसी टाइप से सिमिलरली दी परमानेंट टिश्यूज प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी डेट कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड, बट they help in the further development of any plant. Now we discuss about the classification, that means permanent tissue how many types. So on the basis of types of cells, they may be of 3 types. जो permanent tissues में cells present होती हैं उनके basis पर वो 3 types के होते हैं। First one is the simple permanent tissue, second one is the complex permanent tissue, and third one is the specialized permanent tissue. In this video we discuss only about the simple permanent tissue. As you know about the name, here I show the structure of the simple permanent tissue. Now understand simple permanent tissues, we can say simple, that means they made up of only one type of cells. उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स होती हैं। जस्ट यू लुक हियर इन दिस डायग्राम्स, यहाँ पर सिमिलर सेल्स हैं, ये भी ओवल शेप की हैं, ये हेक्सागोनल शेप की हैं सारी सेल्स, ये आपकी थोड़ी सी इरेगुलर शेप की सेल्स हैं। तो सभी सेल्स कैसी हैं, एक सी हैं। तो इन दिस वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड ए कॉमन फंक्शन। वो सेल्स जो हैं, क्योंकि सेल्स से क्या मिलता है, टिश्यूज बनते हैं आपके, तो दो सेल्स मेक ए group of tissue that play a common function. Now they also divided into 3 groups. Again, जो simple permanent tissues है we divide into in 3 groups. First one is the parenchyma, second one is the collenchyma, and third one is the sclerenchyma tissues. Now first one, parenchyma. Parenchyma cells, you look here, these structures, these are the parenchyma cells. Parenchyma cells, they has oval structures, you see here,
and circular polygonal cells with intercellular spaces. It is a important point. Intercellular spaces, आप देख रहे हैं ये जो गैप होता है, that means एक सेल है हमारी कोई भी, ये हमारी कोई सेल है दो, तो इनके बीच में ये जो गैप प्रेजेंट है, this gap is known as the intercellular space, IS. इन शॉर्ट फॉर्म में इसको यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ, intercellular space. Now next is they are thin walled. You look here, मैंने यहाँ पे डिनोटेड भी किया है. Thin wall cells, they have cytoplasm and a nucleus, and they are present in all organs of a plant. एक plant के सभी organs, that means leaf, branches, fruits, seeds, seedlings, in each organ of a plant these cells are present. Next, what are the function of these cells? They play a important role in the storage of food and water. वाटर के लिए भी मेनली कहाँ पर, जो हम जैसे हम फ्लैशी फ्रूट्स खाते हैं, डेट मीन्स वो फ्रूट्स जिनके अंदर आपका रस होता है, जूस प्रेजेंट होता है, तो उन सेल्स के अंदर भी आपकी जो कौन सी मेन सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन फ्रूट्स के अंदर, आपकी पेरेंकाइमा सेल्स आर प्रेजेंट देयर. और सम प्लांट्स राइट हियर, ऑप्टूनिया एंड यूफोरबिया. यूफोरबिया डेट मीन्स हिंदी में जिसको बोलते हैं आखा का पेड़. आप लोगों ने देखा भी होगा अपने घर के आसपास, एक मोटा सा लीफ वाला स्ट्रक्चर होता है, तो एंड दैट इज हैव ए शॉर्ट हाइट. तो यूफोरबिया दे हैव ए क्वालिटी टू स्टोर दी वाटर इन इट. नाउ second one is they help in gaseous exchange in hydrophytes. Hydro that means जहाँ भी hydro word आ रहा है, that means we are talking about in relation of water. तो that means in aquatic plants, जो हमारे aquatic plants होते हैं, water में जो हमारे plants discover होते हैं या found होते हैं, उन cells के अंदर आपकी जो ये parenchymatic cells हैं वो present होती हैं. और because as I told earlier कि उनके बीच में क्या present है, इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट है, डेट मीन्स एक गैप प्रेजेंट है. तो हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर उस गैप को हमने क्या कहा है, वी सेड अबाउट दैट एयर कैविटीज. और इस एयर कैविटीज के थ्रू ही जो प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो फ्लोट करते हैं वाटर की सरफेस पे. नेक्स्ट वन इज समटाइम्स दीज सेल्स हैव सेल्स डेवलप क्लोरोप्लास्ट इन इट सेल. जो सेल्स हैं वो इतनी कैपेबल होती हैं कि वो अपने आप ही क्लोरोप्लास्ट जो है उसको डेवलप कर लेती हैं, जिसकी वजह से इनको सेकंड नेम दिया गया है, डेट इज द क्लोरेनकाइमा. एंड थ्रू दिस क्लोरोप्लास्ट दे आर कैपेबल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. और व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? डेट मीन्स दे आर कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ. नेक्स्ट, दे शो द सेकेंडरी ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क एंड हीलिंग ऑफ वुंड्स. डेट मीन्स अगर हम प्लांट को कहीं से कट कर रहे हैं तो उसकी जो सेल्स हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या कर रही हैं, खुद को रिपेयर कर लेती हैं. नाउ वी टॉकिंग अबाउट द सेकंड वन, दैट इज द कोलेनकाइमा. दीज आर द कोलेनकाइमा सेल्स. नाउ दे हैव लार्ज सेल्स. यू लुक हियर द स्ट्रक्चर डिफरेंस. दीज आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स एंड दिस वन इज द लार्ज स्ट्रक्चर. सो दे हैविंग द लार्ज सेल्स विद नो इंटरसेलुलर स्पेसिस. इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है. यहाँ भी जो ये गैप है ये नहीं प्रेजेंट होता है. यहाँ पर आपका जो सेल वॉल है वो कवर कर लेती है और सम फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट आल्सो हियर. नाउ सेल वॉल बिकम्स रिज्ड. ओके, सेल वॉल बिकम्स रिज्ड एंड थिक एट कॉर्नर्स. यू लुक हियर, कॉर्नर से जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, रिज्ड हो जाती है. और कैसी हो जाती है, उसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसिस है वो बिल्कुल आपके वहां पर फिनिश हो जाते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स. These only found in the dicotyledon plants and monocot stem. Dicotyledon that means आप देखते हैं पीनट्स, आप देखते हैं पीस क्या होता है कि पीस का दाना इजीली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. पीनट 2 पार्ट्स में इजीली डिवाइड हो जाती है. तो दीज आर द डाइकोटिलेडन स्टेम्स. तो उनके अंदर आपकी कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कोलेनकाइमा सेल्स आर प्रेजेंट. फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ. डेट मीन्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ वो दे रही हैं, ये सपोर्ट दे रही हैं प्लांट को. डेट मीन्स उसकी वजह से ये जो प्लांट है वो अपने आप को होल्ड करता है इनटू द सॉइल. दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द नोड एंड टेक पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस.
क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है. सो दे आर ऑल्सो कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ. नोड्स क्या होते हैं? ये आपका कोई प्लांट है. प्लांट्स आप सभी ने देखे होंगे अपने घरों में. दिस इज ए नॉर्मल प्लांट. नाउ this one from where this leaf is arise is known as the node. This point is called node. So at this node point the collenchyma cells are present and provide the flexibility. हम easily जो लीफ है उसको डिटैच कर देते हैं ना स्टेम से, तो किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू दिस collenchyma cells. Next third one is the sclerenchyma cells. This ones sclerenchyma cells. अभी दो जो सेल्स हमने पढ़ी हैं पेरेन्काइमा सेल्स और वी कैन से पेरेन्काइमा टिश्यू एंड कोलेनकाइमा टिश्यूज, उनकी जो सेल्स थी वो लिविंग्स थी. डेट मीन्स उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था. लेकिन अब हम जिस सेल्स की बात कर रहे हैं, टिश्यू की बात कर रहे हैं, डेट इज द स्क्लेरेन्काइमा. उसमें जो सेल्स हैं दे आर द डेड एंड विथ थिक सेकेंडरी वॉल्स. उनकी जो सेल वॉल है, यू कैन लुक हियर, ये सेल्स हैं और इनके सेल्स के सराउंडिंग ये क्या प्रेजेंट है? आपकी सेकेंडरी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं. So they are thick, they have the thick structure. On maturation they differ in shape and size. जब वो मैच्योर हो जाता है प्लांट, तो उसमें क्या हो जाती है, जो इनका साइज है और शेप है आपका स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का, वो डिफर हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है. On the basis of this differences of cells, they also may be of two types. First one is the sclerenchymatous fibers, that means thread-like structures. And second one is the stone cells. So we are talking about completely in this video about permanent tissues. Hope you understand very well. Please draw this diagram in your fair notebooks and read these tissues, because these tissues are important. Sometimes examiner asks about the differences between the parenchyma tissue, collenchyma tissue and sclerenchyma tissue. So if you learn these points, you also write the differences between them. Thank you class. Thank you so much.